بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے لیکچر میں ہم نے متشابہ الصوت حروف میں سے ہا، حا، عین، حمزہ، سا، سین، پھر اس طرح سین، صاد، زال، زا، اور اس طرح زال اور ضا اور ضا اور ضاد، یہ سارے پڑھے تھے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سنوں گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی اقرا احسان، آپ سب سے پہلے حمزہ اور ہا ان کا مخرج بتائیں اور ان کی مشق سنائیں. جی آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. چلیں عنایہ، تب تک آپ سنائیں. حمزہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائیں بغیر دبی ہوئی آواز میں پڑھنا ہے، اور بغیر ہا دبی کو ہوئی ادا دبی ہوئی آواز نہیں، بغیر دبی ہوئی آواز حمزہ کو. بغیر دبی ہوئی آواز میں پڑھنا. ٹھیک ہے. ہا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائیں بغیر دبے ہوئے سانس میں پڑھیں. لیکن ہاں میں دبے ہوئے، ہاں نے یہاں بھی بغیر لگا دیے ہیں. چلیں اب ان کی مشق سنائیں. ہا، حمزہ، یہ ہا کے ساتھ ہا ہے، ٹھیک ہے. ہا کے ساتھ ہا، ہا، ہا. جی دوبارہ سنائیں. ہا، ہا، ہاں. پھر پڑھیں، تین تین دفعہ پڑھا کریں. ہا، ہا، ہا ہا، ہے، ہا، ہا. یہ آواز کو گلے سے باہر کی طرف نکالنا ہے. ہا. ہا ہے، جی جی. ہا ہے. چلے ماشاء اللہ. جی آگے فوزیہ آپ سنائیے حمزہ اور عین. آئین کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں پڑھنا ہے. اور حمزہ کو. حمزہ حمزہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر دبی ہوئی آواز میں پڑھنا ہے. جی. جیسے حمزہ، آئین، حمزہ، آئین. حمزہ کو بطور مفرد کے نہ پڑھیں، اس کو مرکب بنا کر پڑھیں. جیسے یہاں پہ مثال کیسے تھی؟ عین، عین. آئین، ہاں یعنی وہ آئین، عین کی جگہ پہ حمزہ ہی ملا کے پڑھ دینا، حمزہ زبریہ عین ایسے کر کے. جی جی. عین، عین، آئین، عین، آئین، عین. جی آئین، پڑھیں. آئین، آئین، آئین. ہاں عین میں تھوڑا سا گلے کو دبا کے پڑھے، گھونٹ کر. عین، عین. آئین، آئین. چلے جی ماشاء اللہ. جی آگے کون ہے؟ فاخرہ. فاخرہ آپ. نہیں یہ آپ کے ساتھ ہی تیسرا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ فخران کیا ہے؟ فخر یہ فخرن النساء. ہے وہ، آج اپنی آئی ڈی سے جوائن کی ہے. جی اچھا، آپ نے الگ سے بھی جوائن کیا ہوا ہے؟ جی. چلیے آپ بتائیے سا اور سین، ان کے مخرج بتائیں اور ان کی مشق سنائیں. زبان زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر بغیر سیٹی والی آواز میں پڑھے، اور جی. سین زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کر باریک آواز میں پڑھے. جیسے سا، سین،
सा सीन सा सीन। जी दोबारा से पढ़ें। सा सीन तीन तीन बार सा पढ़ जी। सा सीन। सीन सा सीन। सा सा सीन चले माशाल्लाह ठीक है। सा जी इकरा सीन। एहसान आप मौजूद हैं? जी जी, मैं क्लास में ही हूँ। जी चले आप सुनाए सीन और सौद। वो आपका माइक उस सीन। वक्त बंद हो गया था। जी और नेट इशू की वजह से। तो को जी जुबान की नोक को सामने वाले ऊपर के दो दांतों के अंदरूनी किनारे से नरमी से लगाकर बगैर सीटी के बनेंगे। जैसे सा। और सीन को जुबान की नोक को नीचे के दो दांतों के किनारों से मजबूती से लगाकर वाली आवाज से पढ़ेंगे। जैसे सीन। सीन। सा। सा। हाँ सीन। सा। सीन। सा। सीन। चले माशाल्लाह। जी आगे बरीरा जीनत आप जाल और जा इन दोनों के बारे में बताएं। पहले मखरज बयान करें फिर मशक सुनाएं। जी, बरीरा। जो जाल है उसको, जो जुबान की नोक है उसको। जी मैं बोल रही हूँ। जी जी जो जाल है उसमें जो जुबान की नोक है उसको सामने वाले ऊपर वाले दो दांतों के साथ लगाना है और नरमी से पढ़ना है। और जो जाल है उसमें जो जुबान की नोक है उसको भी दांतों के साथ लगाना है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सीटी से पढ़ना है इसको। जिस हाँ तरह जाल, ठीक है। जाल, जाल, जाल। तो जा को तो जाल नहीं ना पढ़ेंगे। जाल जा जाल जा दोनों को अलग अलग पढ़ें। जी, जाल, जा, जाल, जा। ठीक है माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं फरहाद शाहिद। आप जाल और जाल और इनका मखरज बताएं और फिर मशक करें। अच्छा, जाल जबान के किनारे सनाए उलिया के जु, जुबान का जड़ किनारा नहीं जुबान की। हाँ ठीक है। नोक, जबान की जुबान की नोक नोक किनारा और चीज होती है। किनारा ना साइडों को कहते हैं और जो नोक जी होती है सर। वो सामने वाली होती है। जी जी। जबान की नोक सनाए उलिया के किनारों से जब लगे तो जाल अदा होता है, और ये नरमी से अदा करना है बगैर सीटी के। जी और ज़ुआ में जबान के किनारे सनाए उलिया की जड़ से लगे, के किनारे से ही लगेंगे, लेकिन ये और जड़ तालू की तरफ उठेगी, जबान की जड़ जो है ना। जी मोटा करने के लिए। मोटा, जी मोटा जी अल्फाज अदा होगा। जैसे लाल, ठीक है। लाल, वा, वा, लेकिन जुआ को पढ़ते हुए होंठ गोल नहीं करने। पेश की बू नहीं आनी चाहिए। वो लाल वा, वो। लाल, वा, हाँ वा, लाल वो। लाल, वा, जुआ नहीं वो। वा, मुंह खोल के वा, होंठों को बिल्कुल खोल के वो। वा। जी अब ठीक है। फिर दोबारा से पढ़े दोनों को मिला के। लाल, वा। चले माशाल्लाह ठीक हो गया। जी आगे हैं शबाना नूर। आप वा और ज़ाद इन दोनों का बताएं। जी। जबान की नोक जब सामने वाले ऊपर वाले दांतों को टच करेगी तो जबान की जड़ जो वो नहीं ऊपर को उठेगी, तो इससे
अदा होगा। जी और ज़ुआद जो है वो उसमें पूरी जुबान ऊपर को उठेगी और इसके किनारे जो है ऊपर वाली दाढ़ों से जाके लगेंगे, तो फिर इसका महरज अदा होगा। ठीक है। तो इसको मोटा करके पढ़ते हैं, जैसे जी ज़ो, ज़ो, स्वाद, स्वाद। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक जी। आगे हैं आयशा बशीर। आप सीन और सौद इन दोनों का मखरज और मशक सुनाएं। आयशा बशीर। जी मैं सुनाती हूँ। तीन की जब अदायगी करनी होती है तो जो जुबान की जड़ होती है, जुबान की जड़ को नीचे रखकर बारीक आवाज में पढ़ते हैं, जैसे कि सीन, सीन। ठीक है। और जो स्वाद की अदायगी होती है वो है जुबान की जड़ को ऊपर उठाकर मोटी आवाज में पढ़ते हैं, स्वाद, स्वाद। चले माशाल्लाह जी। आगे जरका असद। आप जाल और जा इन दोनों का मखरज और इनकी मशक सुनाएं। जी जरका मौजूद है। जी कारी साहब आपकी आवाज कट रही है। जी। आप जाल और जा का मखरज सुनाएं। बाकी सब लोगों को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी जी कारी साहब। जी हाँ। ये जरका मेरा आपके पास फिर नेट का इशू है, क्योंकि जब बाकी सब लोगों को आवाज ठीक जा रही है तो फिर नेट आपके पास कोई मसला है नेट में। चलें जी, हम नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं। आप आपकी चूंकि आवाज नहीं आ रही, इसलिए हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। आप रिकॉर्डिंग जो है वो सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेसन है हरकत की अदायगी की पहचान और मशक। यानी जब हरकत को पढ़ना है तो कितना उनको लंबा करना है और कैसे पढ़ना है। हरकत में आमतौर पे जो गलती होती है वो मजहूल पढ़ने की गलती होती है। यानी बाजिर बी को पढ़ते हैं बे, जिस तरह देहातों के अंदर अलिफ बे ते से इस तरह पढ़ते हैं, तो ये मजहूल अदायगी है और ये तजवीद के कवायद के खिलाफ है। तो हरकत में एक होता है सिर्फ जबर और एक है खड़ा जबर। तो खड़ा जबर का मतलब दो जबर, यानी उसको आपने लंबा करके पढ़ना है। उसको आपने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, उसको एक अलिफ भी कह देते हैं। तो जबर की अदायगी और खड़े जबर की अदायगी, इन दोनों में फर्क होता है और ये बहुत ज्यादा गलती पाई जाती है। जब भी अदायगी की जाती है तो जबर को लंबा कर दिया जाता है। जबर को लंबा करें तो अलिफ पैदा हो जाता है, वो खड़ा जबर बन जाता है, या आप कह लें कि अलिफ पैदा हो जाता है। जेर को अगर लंबा करें तो वहां पर या पैदा हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि वहां पे खड़ी जेर बन जाती है। इस तरह अगर पेश को लंबा करें तो वहां पे वाव पैदा हो जाती है, या वो उल्टा पेश बन जाता है। तो इसलिए जबर और खड़ा जबर इन दोनों में ध्यान से अदायगी करनी होती है। खड़े जबर को दो जबर के बराबर, तो खड़ा जबर आप कह सकते हैं कि वो अलिफ ही है। चूंकि रस्म के अंदर वो अलिफ नहीं लिखा होता, लेकिन जब्त के अंदर बतौर अलामत के वो अलिफ डाल दिया जाता है। तो हरकत की अदायगी की पहचान और उसकी मशक। जबर जेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। यानी जबर जेर और पेश, इनको हरकत कहते हैं। ये तीनों हरकत हैं और इकट्ठी तीनों को हरकत कहते हैं।
حرکات مختصراً دو قسم کی ہیں، حرکات دو طرح کی ہیں۔ نمبر ون پڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں پڑا زبر، پڑی زیر اور سیدھی پیش، ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آپ اس کو صرف زبر زیر پیش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کھڑا زبر کھڑی زیر کے مقابلے میں ان کو بولیں تو پھر اس کو پڑا زبر کہہ دیتے ہیں، پڑا زبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح پڑی زیر بھی کہہ سکتے ہیں اور سیدھی پیش بھی کہہ سکتے ہیں، ایک الٹا پیش ہوتا ہے۔ تو ان کو کھینچے بغیر پڑھیں گے، یعنی ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، تو تینوں کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو یہ بن جائے گا باتا سا، باتا سا۔ اگر اس کو آپ پڑھیں با تا سا تو یہ غلط ہے، با تا سا یہ آپ نے کھڑا زبر کی الف پڑھ دی ہے، باتا سا۔ ایسے ہی بہت سارے جو افعال ہوتے ہیں، جیسے ضرب، درس، خرج، دخل، تو یہ سارے کے سارے حروف ایک ایک زبر والے ہیں اور ان کو زیادہ نہیں کھینچتے۔ لیکن کئی لوگ خراجہ کو، مثلا خراجہ کو پڑھیں گے خراجہ یا خراجہ یا خارجہ، یہ سب غلط ہے۔ باتاسا، یہ زبر کی تینوں علامتیں ہیں، باتاسا باتاسا۔ یہاں آپ نے صرف حروف کی لمبائی کو آپ نے چیک کرنا ہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، باتاسا۔ اور اگر زیر ہو تو یہ بن جائے گی بازر بھی، تازر تی، سازر سی، بیتی سی، بیتی سی۔ تو اس کو بی تی سی یا بی تی سی یا بیتی سی اس طرح کر کے لمبا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ادھر سے باتا سا، یہ بیتی سی، بیتی سی۔ اور اگر پیش ہو تو با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، بوتو سو، بوتو سو، بوتو سو۔ تو ان میں سے کسی ایک کو بھی لمبا کر دینا، بو تو سو یا بو تو سو یا بو تو سو، یہ غلط ہے۔ تو حرکات کی مقدار کو کنٹرول میں رکھ کر پڑھنا، باتا سا، بیتی سی، بوتو سو۔ یہ ہیں زبر زیر اور پیش، یا پڑا زبر پڑی زیر اور سیدھا پیش۔ اب اس کے بعد آگے حرکات کی دوسری قسم ہے اور ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات، اور وہ یہ ہیں، یعنی کھڑا زبر یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، کھڑی زیر الٹی پیش، تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا باتا سا، تو نیچے ہے با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، تو ان کو ہم باتا سا نہیں پڑھیں گے بلکہ باتا سا، باتا سا۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف زبر اور کھڑی زبر میں کیا فرق ہے، باتا سا اور باتا سا، باتا سا۔ اب اس کو اگر ہم بتا سا پڑھیں گے یا باتا سا پڑھیں گے یا باتا سا پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تینوں کو برابر برابر، یعنی دو حرکت کے برابر سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو حرکت کے برابر، وہ ایک الف ہوتا ہے، با تا سا۔ اس کے بعد کھڑی زیر ہے تو اس کو با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، تو یہ گویا کہ اس کے آگے یا لگ گئی ہے۔ کھڑا زبر ایک الف ہوتا ہے اور کھڑی زیر یا ہوتی ہے، تو اس کو بیتی سی نہیں بلکہ بیتی سی، بیتی سی، بیتی سی۔ نیچے ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے دونوں طرح سے ہی،
कि अगर सिर्फ जबर जेर पेश हो तो कितना लंबा करना है, उसकी मिकदार क्या होगी, और अगर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश हो तो उसकी मिकदार क्या होगी। और तीसरे नंबर पर उल्टा पेश है, बा उल्टा पेश बू, तो उल्टा पेश गोया के वाव होती है, दा उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सु, बू तू सु। ऊपर हमने पढ़ा था बू तू सु, तो ये है बू तू सु, यानी हर हर्फ के बाद वाव पैदा करना। अब इनका पड़ी और खड़ी हरकत बैक वक़्त, पड़ी और खड़ी हरकत बैक वक़्त, यानी अब उनको मिलाकर मशक, ताकि दोनों की मिकदार का अलग अलग से अंदाजा हो जाए। तो पहले हम पढ़ेंगे यहां पर खड़ी हरकत को, बा ता सा, क्योंकि ऊपर खड़ी हरकत है यानी खड़ा जबर ऊपर है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, बा ता सा। और फिर पड़ी हरकत को, बा ता सा। अब इन दोनों को मैं बार बार पढ़ूंगा, आपने उनकी मिकदार के ऊपर ध्यान देना है। बातासा, 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 बातासा। तो इस तरह करके फर्क होगा। फिर उसके बाद आगे खड़ी जेर और जेर का है, बीती सी, बीती सी, बीती सी, बीती सी, बीती सी, बीती सी। और सबसे आखिर में फिर आगे पेश का आ जाता है, और उल्टा पेश का है, बूतूसु, 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 बूतूसु। तो ये मिकदारें हैं। पढ़ने के दौरान बसा औकात जबर को खड़ा जबर बना दिया जाता है, जेर को खड़ी जेर बना दिया जाता है, पेश को उल्टा पेश बना दिया जाता है, या इसके बिल्कुल बरक्स हो जाता है कि जहां पे आपने खड़ा जबर पढ़ना है वहां पे जबर पढ़ देते हैं, जहां पे खड़ी जेर पढ़नी है वहां पे आप सिर्फ जेर पढ़ देते हैं, और जहां पे उल्टा पेश पढ़ना है वहां पे सिर्फ पेश पढ़ देते हैं। तो इनका आपने खुसूसी तौर पर लिहाज रखना है। जी, उसके बाद फिर नीचे और हरकत तफसीलन 6 किस्म की हैं। यहाँ इन्हीं हरकत का जो नाम दोबारा से लिख दिया है कि पड़ा जबर, खड़ा जबर, पड़ी जेर, खड़ी जेर, सीधी पेश, उल्टी पेश, यानी उन्हीं को ही उन्होंने यहाँ पे उनके नाम रख दिए हैं। हरकत की अदायगी का खास ख्याल रखें, क्योंकि पड़ी हरकत को खींचने से कुरान मजीद में ज़्यादती, और खड़ी हरकत को बगैर खींचे पढ़ने से कमी लाजम आती है, जो कि हराम है। उसके बाद फिर आगे तफसीलन जो है इनकी मशक आएगी एक एक करके, लेकिन आज इजमालन जो हमने पढ़ा है बुनियाद यही है। जी, मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ दोनों को अलग अलग, और उसके बाद फिर मैं आपसे सुनूंगा। बातासा, बातासा, बीती सी, बीती सी, बूतूसु, बूतूसु। जी, अब आप में से कौन सुनाएगा मुझे इन दोनों को मिलाकर पढ़ना? जी इनाया। Batasa, जी, ऊंची आवाज से। batasa, batasa, ठीक है। batasa, जी, BTC, BTC, butusu, butusu, शाबाश जी। आगे फौजिया। बतासा, जी, बतासा, बीतीसी, बीतीसी, बुतुसु, बुतुसु। चले माशाल्लाह जी। आगे फखरुन्निसा। बातासा, जी, बातासा, बीतीसी, बीतीसी, बुतुस, बुस, जी, बुरसुसु, बूतूसु, बूतूसु। बासा, चले ठीक है, आगे हैं बरीरा। बरीरा आप पढ़े। बुतुसु, बातासा,
बातासा, बातासा, बीटीसी, बीटीसी, इसको दोबारा पढ़े, बूतूसु, सोचना नहीं है, बूतूसु, सोचे बगैर। जी, बीटीसी को दोबारा पढ़े। बीटीसी, जी बीटीसी, बूतूसु, बूतूसु। चले माशाल्लाह। जी आगे फरहाद शाहिद। चले जी, इकरा एहसान आप पढ़े। जी। बातासा, बातासा, जी, BTC, BTC, ये तो आपने बू दोनों ही बीटीसी पढ़ दी हैं। BTC, सॉरी, हाँ BTC, BTC, ठीक है। बूतूसु, बूतूसु। चले माशाल्लाह। जी आगे हैं शबाना नूर। जी। बतासा, जी, बतासा, बीतीसी, बीतीसी, बोतुसु, बूतु, बूतुसा, सॉरी, बूतूसु। बूतु, चले हाँ जी, माशाल्लाह। जी आगे बूतुसु। आयशा बशीर। बातासा, जी, बातासा, ये ज्यादा लंबा बीतीसी, कर दिया आपने, इतना भी लंबा नहीं करना, सिर्फ दो हरकत के बराबर। बतासा, बतासा। ये अगर लंबा करेंगे ना, बतासा, वो ढाई हरकतें हो जाती हैं, दो हरकत के बराबर। जी अच्छा, बातासा, जी बातासा, जी बीतीसी, बीतीसी, बूतुसु, बूतुसु। चले जी माशाल्लाह। जी और कौन रह गए हैं? जी कर सब मैं रहती हूँ। जी जी फरहाद, चले आप सुनाएं। बातासा, बातासा। ये आपने सा को छोटा कर दिया है, बातासा ऐसे नहीं, जी। बातासा, दोनों तीनों को बराबर। बातासा, जी बातासा, जी बीतीसी, बीतीसी, जी बूतुसु, बूतुसु। चले माशाल्लाह। चले जी, आज का हमारा लेसन इतना ही है। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज पूछने वाली है, आपको समझ ना आई हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसको कम अज कम जो है ना, 50-50 मरतबा इसकी मशक करके आनी है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसको आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको बाद में खुद सुने। ठीक है। जी। चलें जी, अजान हो रही है, हम क्लास क्लोज करते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।